friends, so today we are going to start, or rather I can say do a sum which includes everything. Everything means your subsidiary books, your cash book, your journal proper, your ledgers, your trial balance, everything that we are going to cover in this particular sum. So you can understand from this particular video the posting from subsidiary to ledgers, posting from journal entry to ledgers, posting from cash book to ledgers also, and from ledgers how do we write the trial balance, वो भी हम ये particular video में cover करेंगे. So this is going to be a sum which you can revise quickly on the day before your exam. आप सिर्फ एक बार ये पूरा video देख लो एग्जाम के अगले टाइम पे, so you will be able to revise the whole thing कि भाई जर्नल एंट्री कैसे लिखते हैं, सब्सिडियरी बुक्स कैसे बनती है, कैश बुक कैसे बनती है, लेजर पोस्टिंग वो सभी में से कैसे होता है, एंड ट्रायल बैलेंस कैसे होता है. सो इट विल बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर रिविजन, राइट. सो लेट्स बिगिन दिस पर्टिकुलर सम. Following are the transactions in the books of X, Y and Z Limited. जनवरी 2020 के कुछ ट्रांजेक्शन्स हमें क्वेश्चन में दे के रखे हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई स्टार्ट विथ एनीथिंग, वन थिंग यू नीड टू बी क्लियर इन योर माइंड इज कि भाई सब्सिडियरी बुक्स में देर आर 4 सब्सिडियरी बुक्स विच आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली फॉर गुड्स, एंड आई कैन से ऑल द क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट. सो हमें ये ध्यान में रखना है, राइट, कि भाई वो सब कहाँ लिखेंगे, हम सब्सिडियरी बुक्स ऑफ गुड्स में लिखेंगे, यानी कि परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक. If there is any transaction like related to cash or bank, we'll be recording it in cash book, right. And if anything which is left, वो हम कहाँ लिखेंगे, journal proper में, which includes nothing but your journal entries only. हम जैसे journal entry pass करते हैं वैसे ही same format में हमें journal proper में लिखना है, correct. So I hope you are clear with that particular thing कि भाई क्या कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, correct. Now let's start with the sum. One by one we'll be taking one of the transaction. एक transaction देखेंगे, उसको लिखेंगे, and then we'll move further with the next transaction, correct. चलो, Mr. Rahul started business with cash of rupees 2 lakh, bank balance of rupees 1 lakh, stock of rupees 1 lakh and 10% bank loan of rupees 1 lakh. उसने कुछ इतनी चीज़ों से business शुरू किया, correct. Can I say there is cash का balance, there is bank का balance which I am supposed to write where? Definitely in cash book. Then stock I am not supposed to write in cash book, obviously not in the subsidiary books of goods also. So for that I need to pass a journal entry. Then there is 10% bank loan. बैंक लोन के पैसे कहाँ आते हैं, डेफिनेटली बैंक में आते हैं, करेक्ट. सो वो भी मैं कहाँ लिखूंगी, कैश बुक में लिखूंगी. सो हाउ आई एम सपोज टू डू दिस, इसको मैं किस तरीके से लिखूंगी, कैसे लिखूंगी, लेट्स हैव अ लुक. कैश एंड बैंक का बैलेंस इज गिवन 2 lakh and 1 lakh. सो लेट्स जस्ट राइट इट डाउन इन माई कैश बुक over here. As you can see over here, January, just a minute, it is 2020, right. So 2020 January 1st to capital account will be there, right. It is not balance brought down, it is capital account because he has introduced the capital. वो भी अभी business शुरू कर रहा है, right. 2 lakh and 1 lakh. Then there is 10% bank loan along with the same. यहाँ पे कुछ ऐसा भी है, बैंक लोन इज देयर ऑफ रुपीज 1 lakh. तो क्या करूंगी मैं, कैसे लिखूंगी, डेफिनेटली टू 10% बैंक लोन अकाउंट 1 lakh rupees. And the only thing which is left over here is what, stock. I can say over here you can see this स्टॉक दिख रहा है 1 lakh रुपीज़ का. सो उसके लिए व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू राइट अ जर्नल एंट्री इन जर्नल प्रॉपर, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट रुपीज 1 lakh. इज इट कंप्लीटली ऑल राइट. सो लेट्स राइट इट डाउन इन जर्नल प्रॉपर 2020 January 1st. It will be stock account debit to capital account रुपीज़ 1 lakh and 1 lakh. इज इट कम्प्लीटली ऑल राइट. जो चीज़ें कैश बुक में लिखनी थी कैश बुक में लिखी, और जो और कहीं नहीं लिखनी थी उसको जर्नल प्रॉपर में लिख दिया. आई होप द वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज क्लियर विथ ऑल ऑफ अस, राइट. चलो फिर आगे बढ़े.
Purchase furniture from Pepperfry of rupees 50,000. Purchased furniture from Pepperfry of rupees 50,000 ऐसा बोला गया है. It is not given कि हमने कैश या कार्ड कहीं से भी पेमेंट करा है, मीनिंग thereby it is a credit transaction. करेक्ट. नाउ डोंट कंसिडर इट कि मैम उसमें तो कहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, इट इज़ एन ऑनलाइन साइट. ऐसा कुछ नहीं है. हमें पेपरफ्राई को प्रैक्टिकल से कनेक्ट नहीं करना है कि अभी के पेपरफ्राई की साइट है, ऑनलाइन शॉपिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं कनेक्ट करना है. ठीक. इट इज़ जस्ट अ नेम ऑफ अ शॉप, ऐसा अज्यूम करके चलना है. सो मैंने पेपरफ्राई से फर्नीचर बाय करा है एंड आई हैवंट पेड द मनी येट. और फर्नीचर बाय करा है, डेफिनेटली सब्सिडरी बुक्स ऑफ गुड्स में नहीं जाएगा, कैश बुक में नहीं जाएगा, तो कहाँ लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर में. करेक्ट. सो इन माई जर्नल प्रॉपर ऑन थर्ड डेट आई विल बी राइटिंग फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पेपरफ्राई अकाउंट 50,000 and 50,000. आई होप इट इज कम्प्लीटली क्लियर. चलो फिर आगे बढ़े. परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20,000. गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 परचेज करे हैं. यहाँ पे क्या किसी का नाम है? द आंसर इज नो, मीनिंग देयर बाय इट इज अ कैश परचेज. करेक्ट. सो उसको हम कहाँ लिखेंगे? कैश बुक में लिखेंगे. सो इन माई कैश बुक 2020 January 5th पैसे डेफिनेटली परचेज कर रहे हैं तो जाएंगे. बाय परचेज अकाउंट 20,000. completely all right. चलो let's move ahead then. Sold goods of rupees 10,000. Goods गए and cash is coming in, right? So and how come it is a cash transaction? Because there is no name given in it, right? So ये cash transaction है. cash book में again लिखेंगे. On 6th of the date to sales account it will be 10,000. चलो then next. परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम शाहिद एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. मैंने शाहिद के पास से गुड्स बाय करे हैं, दैट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट. 20,000 के गुड्स बाय करे हैं, राइट. सो ओवर हियर व्हाट एम आई सपोज टू डू? 20,000 माइनस 10% दैट इज 2,000 माइनस करेंगे. 18,000 का मैंने बाय करा है. हियर शाहिद नेम इज गिवन, मीनिंग देयर बाय इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. सो ओवर हियर आई विल बी राइटिंग in purchase book, as you can see on your screens, 2020 January, which date it is? 9th, right? So January 9th, just a minute, January 9th, Shahid account, it will be 18,000. that's all. purchase book में लिख देंगे and we are done with it. चलो फिर आगे बढ़े. sold goods of 50,000 to Karan at 10% trade discount and 10% cash discount if the payment is made within 10 days. अगर करण हमें 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर रहा है तो हम उसको एडिशनल 10% का कैश डिस्काउंट देंगे. अदरवाइज हम करण को गुड्स बेच रहे हैं, 50,000 के गुड्स है, माइनस 10% दैट इज 5,000. 45,000 के गुड्स हमने करण को बेचे, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है, राइट. एंड दैट टू इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सो ओवर हियर आई विल बी राइटिंग ऑन 12th of the date in my sales book 2020 January 12th Karan's account it will be 45,000. that's all. why so? because पेमेंट करेगा तो उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा बोला गया है. अभी तक उसने कुछ भी पे करा नहीं है. करेक्ट. आई होप इट इज कम्प्लीटली क्लियर. लेट्स मूव अहेड. purchased stationery from Ambika Stationers of rupees 2,000. Ambika Stationers नाम देके रखा हुआ है, meaning thereby it is a credit transaction. So here I am supposed to write it where? In definitely my journal proper. So stationery expense account debit to Ambika Stationers account 2,000 and 2,000. completely all right. let's move ahead. paid salary to employees of rupees 20,000. employees को सैलरी पे करी है तो क्या करेंगे? कहाँ लिखेंगे? डेफिनेटली इन कैश बुक. करेक्ट. सो इन कैश बुक ऑन 20th date बाय सैलरीज अकाउंट 20,000
इजी। चलो फिर आगे बढ़े। करण पेड हाफ ऑफ द अमाउंट विद इन 10 डेज। करण ने आधी अमाउंट 10 दिन के अंदर अंदर पे कर दी है, ऐसा बोला गया है। नाउ यू अंडरस्टैंड ओवर हियर, करण को हमने कितने में बेचे थे? 50,000 माइनस 10% करके 45,000 के गुड्स बेचे थे, राइट। यहाँ पे हम दो पार्ट्स करेंगे इसके। आई होप इट इज कम्प्लीटली क्लियर, दिख रहा है ना सही से? हाँ, उसके दो पार्ट करेंगे। वन विल बी 22,500, वन विल बी 22,500, करेक्ट। यहाँ पे उसने 10 दिन के अंदर अंदर यानी कि आधा 22,500 उसने पे कर दिया है, तो आई एम सपोज टू गिव हिम 10% का कैश डिस्काउंट, नो? सो 20,250 आई विल बी रिसीविंग, एंड कैन आई से दिस इज स्टिल लेफ्ट। उसने अभी भी ये तो पे नहीं करा है ना, उसने अभी भी सिर्फ कितना पे करा है? 22,500 ही उसने पे करा है ना, तो मुझे उसके ऊपर ही उसको डिस्काउंट देना है। अगर मैं जर्नल एंट्री लिखती तो कुछ ऐसे लिखती इसकी जर्नल एंट्री। पहले समझना अच्छे से कैसे क्या आएगा, राइट। इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे लिखते हैं? जस्ट अ मोमेंट। द एंट्री विल बी, just a moment, yes, now you can easily see it. So the entry will be like this: cash account debit 20,250, discount account debit because we are giving him discount 2250, to Karan's account 22,500, completely all right। ऐसी कुछ एंट्री हम पास करते हैं। यहाँ पे अब क्या करना है वो समझना है अच्छे से। यहाँ पे मैं ऐसी कुछ एंट्री पास करती, दैट इज फाइन। क्या नहीं से मुझे ये कैश का जो पोर्शन है वो मुझे कहाँ लिखना है? डेफिनेटली कैश बुक में लिखना है, करेक्ट, बिकॉज आई हैव रिसीव्ड इट। डिस्काउंट का जो पोर्शन है या करण की जो एंट्री है उसके लिए मैं क्या करूंगी? दैट आई एम सपोज टू रिकॉर्ड इन द जर्नल प्रॉपर। उसको मुझे कहाँ लिखना है? जर्नल प्रॉपर में लिखना है, राइट। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंट्री पास करेंगे। डेट इज विच डेट? आई सपोज इट इज 21st, राइट। सो 21st डेट को टू करण's अकाउंट आई हैव रिसीव्ड कितना? 20,250, करेक्ट। And then over here on 21st date I will be writing discount account debit to Karan's account 2250, बिकॉज इसकी भी एंट्री तो मुझे दिखानी ही पड़ेगी किस तरीके से मैंने एंट्री करी है, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट वन। It is करण रिटर्न द गुड्स ऑफ ₹5,000। अब क्या करा करण ने? गुड्स रिटर्न कर दिए 5,000 के, तो उसको कहाँ लिखूंगी मैं? सेल्स रिटर्न में लिखेंगे। चलो लेट्स राइट इट डाउन देन। सेल्स रिटर्न बुक में विच डेट इट वॉज? 22nd, so 22nd Jan 2020, I am writing it over here. Karan's account again 5,000 के गुड्स उसने रिटर्न करे हैं, दैट आई हैव रिटर्न इन द सेल्स रिटर्न बुक। चलो फिर गुड्स ऑफ ₹6,000 रिटर्न टू शाहिद। हमने शाहिद से बाय करे थे, जो हमने शाहिद को अगेन रिटर्न करे, सो दैट विल देयर विल बी परचेज रिटर्न ऑल्सो। लेट्स राइट इट डाउन ऑन 23rd ऑफ द डेट 2020 January 23, शाहिद अकाउंट 6,000 के गुड्स हमने उसको रिटर्न करे हैं, तो रिटर्न की एंट्री कर दी मैंने सेल्स रिटर्न बुक में, परचेज रिटर्न बुक में। फिर विड्रू ₹10,000 फ्रॉम द बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। बैंक में से 10,000 मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए विड्रॉ करे हैं, अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा नहीं है। आई हैव विड्रॉन इट फ्रॉम द बैंक जस्ट टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। आई हैवंट पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल येट, राइट। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू ओवर हियर? इट विल बी व्हाट? It will be a contra transaction over here. The date is 24th, right? So on 24th of the date, can I say बैंक में से 10,000 विड्रॉ हुए, 10,000 यहाँ गए, करेक्ट। कहाँ गए? कैश हाथ में आए, राइट। सो बाय कैश अकाउंट I'll be writing it 10,000 over here, and over here on 24th of the date to bank account contra का C, it will be 10,000।
हाथ में पैसे आए. Now I'll see if I am paying the electricity bill or I am doing something else, right? So this is what the transaction is. Now next is rupees 5,000 paid for electricity and 5,000 for LIC. Now LIC का मतलब क्या हुआ? It is again a personal expense. It is a withdrawal. It is a drawings, right? So उसको मैं कहाँ और कैसे लिखूंगी? कुछ इस तरीके से लिखूंगी. On 25th of the date, by electricity expense, it will be definitely 5,000. That is okay. And on 25th of the date only, by drawings I'll be writing कितना 5,000. भले मैंने ऊपर विड्रॉ करे थे कितने 10,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए, पर उसमें से 5,000 को मैंने LIC भरने में लगा दिया. करेक्ट. सो अगेन इट विल बी ड्रॉइंग्स. चलो फिर आगे बढ़े. विड्रॉ गुड्स फॉर ऑफ ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज. नाउ गुड्स हमने विड्रॉ करे हैं पर्सनल यूज में से, यूज के लिए क्या करेंगे? इसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी जर्नल प्रॉपर में, राइट? सो माय एंट्री विल बी क्या? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. इट विल बी 2,000. सो ऑन 26th ऑफ द डेट, drawings account debit to purchase account. It will be कितना था? 2,000. Yes, 2,000. So it will be 2,000 and 2,000 completely all right. चलो let's move ahead. करण डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. नाउ करण हो गया इंसॉल्वेंट. ये करण ने एक तो पहले गुड्स हमारे पास से क्रेडिट में लिए, फिर आधा पेमेंट किया, फिर आधे रिटर्न करे, फिर ये इंसॉल्वेंट हो गया है. अब चलो फिर क्या बोला गया है? He declared insolvent and could not pay the remaining amount. Only 50 पैसा in a rupee could be recovered. उसके पास से हम कितना रिकवर कर पाए? Only 50 पैसा in a rupee. ना समझना अच्छे से, यहाँ ध्यान. 22,500 कुछ उसके पास से लेने बाकी थे, ऐसा कुछ था अपने पास, राइट? ऐसी कुछ हमने एंट्री देखी थी कि भाई 50,000 उसके पास से लेने अभी बाकी है. करेक्ट. ओवर हियर 22,500 लेने बाकी है. 50,000 नहीं, सॉरी, 22,500 लेने बाकी है. अब 22,500 जो हमें उसके पास से लेने बाकी है पैसे, उसमें से अगर आपको याद हो हमने आगे एक एंट्री ऑलरेडी पास करी जिसमें क्या बोला गया है कि उसने 5,000 के गुड्स हमें रिटर्न कर दिए थे. कहने से यहाँ से मुझे 5,000 माइनस करने पड़ेंगे. 22,500 में से 5,000 के गुड्स उसने मुझे ऑलरेडी रिटर्न करे. कहना इसे 17,500 has been returned by him. Now let's make it even easier. just एक राउंड फिगर कर देते. 0.5 पैसा इन रुपी लिखा हुआ है ना, उसकी जगह let's write it down. Only 7,500 could be recovered. ऐसा हमें क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना है. ओनली 7,500 कुड बी रिकवर्ड. अब उसके पास से मुझे लेने थे कितने? 17,500. आउट ऑफ विच ही गेव मी कितना? ओनली 7,500. कहना इससे ये 10,000 रुपीज़ का क्या हो गया? बैड डेट हुआ. मैं ऐसी एंट्री पास करती अगर सिर्फ जर्नल एंट्री करती कि, तो ध्यान से देखना. कैश अकाउंट डेबिट 7,500, बैड डेट अकाउंट डेबिट 10,000 to करंट अकाउंट 17,500. ऐसा करते. करेक्ट. ओवर हियर आई एम गोइंग टू राइट दिस इन माय कैश बुक डेफिनेटली, but for this I need to make a journal entry in journal proper. I hope it is now clear, right? So over here let's just write it down. यहाँ पे आपको एक चेंज करना है क्वेश्चन में. सिर्फ 50 पैसा इन अ रुपी would be a complicated calculation for the CBSE students, so better we keep it as 7,500, right? So let's just do it. For 27th, to current account we have received कितना? 7,500. correct. And over here 27th of the date, bad debt account debit to current account, it will be कितना? 10,000 and 10,000. completely all right, completely clear. Let's move ahead then. Cash of rupees 50,000 was to be kept in hand and remaining amount to be deposited in bank. 50,000 हाथ में रखो, बाकी की कहाँ डाल दो? बैंक में डाल दो, ऐसा बोला गया है हमें क्वेश्चन में.
सो लेट्स जस्ट डू इट. यहाँ पे कैश इन बैंक रादर कैश बुक आपको दिख रही है, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश बुक का रादर कैश कॉलम का टोटल करेंगे. 210, 230, 20, 250, 240, 250. It is 2,47,750, राइट. अब ये 2,47,750 में से मुझे ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में कि आई एम सपोज टू कीप ओनली 50,000 इन हैंड्स. ऐसा मुझे क्वेश्चन में बोला गया है, राइट. यहाँ पे ऑन 30th तो या रादर 31st डेट पे बाय बैलेंस कैरी डाउन जब मैं लिखूंगी, आई एम सपोज टू राइट ओनली 50,000. बाकी के जो भी पैसे हैं ना उसको मुझे कहाँ डाल देना है, बैंक में डाल देना है, ऐसा बोला गया है. सो नाउ जस्ट डू वन थिंग, 2,47,750 में से हम ये 20, 20, 5, 5 एंड 50 ये सारा कुछ माइनस कर देंगे. जस्ट डू इट क्विकली. सो इट विल बी कितना, 1,47,750. 1,47,750. ये कैश मुझे कहाँ डालनी है, बैंक में डालनी है, बैंक में डिपॉजिट करनी है, करेक्ट. ऐसा मुझे क्वेश्चन में बोला गया है. सो हियर ऑन 31st डेट बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन का सी, ये कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा. तो बैंक में रिसिप्ट साइड पे, डेबिट साइड पे लिखेंगे ऑन 31st ऑफ द डेट टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन का सी. Is it completely all right? Now over here 3,47,750 will be the balance. Sorry, not balance, total. जिसमें से हम 10,000 माइनस कर लेंगे. So we will get 3,37,750 as balance. I hope it is completely clear. Now let's move ahead. क्या बोला गया, that's all. Prepare various subsidiary books, post them into ledgers and trial balance. ऐसा कुछ बनाना हमें बोला गया है क्वेश्चन में, करेक्ट. Over here what am I supposed to do is, सबसे पहले for this particular thing हम क्या करेंगे, ये सब क्लोज कर देंगे, पूरा जो भी है हमने जो बनाया है वो. So यहाँ पे 18,000 टोटल क्रेडिट परचेज, यहाँ पे 6,000 टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न, यहाँ पे इट विल बी 5,000 टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न, एंड यहाँ पे 45,000 टोटल क्रेडिट सेल्स. So we are done with our subsidiary books, the cash book and the journal proper. Now in this particular sum, for this particular sum, you are supposed to see the next video, that is part 2 of this particular sum only, in which I'll be teaching you what, ये सभी जो हमने किया है उसका ledger posting and trial balance will be doing in the next, that is part 2 of this particular sum. Thank you.